شادی والے دن جب میری بیوی دلہن کے روپ میں شادی ہال میں آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اپنے اوپر نہ جانے کتنے دوپٹے ڈال کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، برا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ سارے مہمان عجیب سی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہی ہیں ایسے لوگ لگ رہا تھا شادی میں کوئی ڈاکو داخل ہو گئے ہیں۔ جتنے سارے پردے اپنے اوپر ڈال کر آئی ہے، ہر کوئی اسے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ اس کے پاس ہی اس کی ماں ڈھال بن کر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی بہت زیادہ پردے دار ہے، وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، صرف اپنے پتی کو ہی اپنا چہرہ دکھائے گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ان لوگوں کی سوچ پر مجھے حیرت ہوئی۔ شادی کا دن تھا، ہر کوئی دلہن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ شادی ہال میں اتنی زیادہ مرد تو نہیں تھے جتنے دوپٹے کو اپنے اوپر ڈال کر آئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ میری ہونے والی بیوی بہت نیک ہے، پردے دار ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس بات کا کوئی معاملہ ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اچھی خاصی پردے دار لڑکیوں کو میں نے شادی والے دن دیکھا ہے کہ وہ اچھے سے تیار ہو کر بہت شوق سے فوٹو کھنچواتی ہیں۔ میں اپنی بیوی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دوپٹہ ہٹا دو، لیکن وہ گھونگھٹ کے نیچے سے انکار میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ میری شادی تھی اور میرا منہ خراب ہو چکا تھا۔ زندگی کی نئی شروعات میرے لیے بہت ہی عجیب و غریب ثابت ہوئی تھی۔ میری شادی کا سارا مذاق کرکرا ہو گیا تھا، ہر رشتہ دار باتیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ بھی زیادہ ماڈرن نہیں تھے، عام سے لوگ تھے، لیکن شادی تو اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ سارے مہمان دلہن کو دیکھنا چاہتے تھے اور وہاں پر زیادہ عورتیں ہی تھیں، کون سے زیادہ مرد تھے۔ جب شادی ہال سے ہم دلہن کو رخصت کر کے گھر پر لے کر آ گئے، تب تک میرا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ میرے دل میں دلہن کو دیکھنے کی کسی قسم کی کوئی چاہ باقی نہیں رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شادی کے دن میرا بہت زیادہ مذاق بن چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ میری دلہن کتنی پیاری ہے۔ میں نے خود اب تک اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن سنا تھا کہ وہ بہت ہی پیاری ہے۔ میری پھوپھی اور چاچا بیٹیاں اسے دیکھنے کی خواہش کر رہی تھی، لیکن سب کچھ پلٹ چکا تھا، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ گھر جا کر چھوٹی چھوٹی رسموں کے بعد سارے مہمان چلے گئے۔ میں اپنے گھر میں اپنی ممی کے ساتھ رہتا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ مہمان یہ کہہ کر چلے گئے کہ آپ کی دلہن تو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی ہے، شاید اسے یہ ڈر ہے کہ ہم اسے نظر لگا دیں گے۔ اماں نے میری بیوی کو کمرے میں بٹھا دیا اور مجھے کہا کہ دلہن کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہاری وجہ سے ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا ہے اس کے پاس، جتنی بے عزتی اس نے ہماری کرنی تھی اتنی کر دی۔ اب میرا دل کھٹا ہو گیا ہے اس لڑکی سے۔ میں نے بہت زیادہ غصے سے اپنی امی سے یہ سب باتیں کہہ دی۔ میری امی نے مجھے سمجھا بجھا کر کمرے میں بھیج دیا۔ میں بہت خراب موڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے اسے دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے جا نماز پر اس کا اپسرا کو دیکھ کر میری ساری دنیا بھول گئی۔ میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اوپر سے لال رنگ کا دوپٹہ اپنے گورے سے چہرے پر ڈالے ہوئے بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر کر آ گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے والا سارا غصہ میں بھول چکا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے شادی والا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن میک اپ صاف کر دیا تھا، جو کہ وضو کرنے کی وجہ سے اس نے مٹا دیا تھا، اور اب وہ بنا میک اپ کے تھی۔ جب اتنی حسین تھی تو میک اپ کے ساتھ کتنی اچھی لگ رہی ہوگی۔ وہ دعا میں اس قدر لگی ہوئی تھی، اسے میری آنے کی خبر نہ ہوئی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو وہ چونک گئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے اس قدر معصوم سے سوال کیا کہ میری ہنسی چھوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت کمرے میں تمہارے پتی کے علاوہ اور کون آ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے پوچھا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بیڈ پر بٹھایا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور مجھ سے کہا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے نماز پڑھ لوں۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے اپنا میک اپ اتار دیا ہے، میں ویسے پھر سے تیار ہو جاتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ آپ نے مجھے اس روپ میں نہیں دیکھا جس میں دیکھنے کی آپ کی خواہش تھی۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا، اسے کہنا چاہتا تھا کہ اسے سنگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ فوراً ہی اپنا میک اپ باکس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو میک اپ کے ساتھ آئی تھی۔ اب تو 4 چاند لگ گئے تھے۔ اس نے بہت سارے زیور دوبارہ
दोबारा पहन लिए जो मैंने उसे शादी पर दिए थे। मैं जो बात उसे गुस्से में पूछने वाला था उसे प्यार से पूछ रहा था कि उसने मेरे साथ तस्वीर क्यों नहीं खिंचवाई। उसने कहा कि वह कैमरे में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सबसे पहले आप मुझे देखें। मेरा सारा हुस्न, सारी खूबसूरती सिर्फ आपके लिए है जो दूसरे लोगों को अपना जिस्म दिखा दो। फिर उसने कहा कि आप मुझसे नाराज़ हैं। चलो ठीक है, हम मोबाइल में तस्वीर ले लेते हैं। फिर उसने मोबाइल में ही मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा ली। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह बहुत अच्छी लड़की है और वह अपने पति को राज़ी करना अच्छी तरीके से जानती है। मेरी बीवी को दूसरे लोग देखें तो मुझे भी पसंद नहीं था। फिर मैंने उसे और कुछ नहीं कहा। मैंने खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं रही थी। शादी के कुछ दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह ज़माने को खुश करने वाली लड़की नहीं है। वह सिर्फ पति को खुश करना चाहती है। मैं दिन पर दिन उसकी बातों से बहुत ज़्यादा खुश होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि उसका हंसना हर अंदाज मेरे लिए था। उसे बहुत अच्छे से पता है कि पति को किस तरीके से खुश किया जाता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आगे किस किस्म की क़यामत मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरा जान का आज़ाब बनने वाला है। मेरे कुछ दोस्त काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे थे कि कहीं दूसरे शहर जाकर घूम कर आते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद करी तो मुझे जाना पड़ा। मेरे जाने का सुनकर मेरी बीवी उदास हो गई और रोने लगी थी। मैंने कहा कि एक ही दिन की तो बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मैंने अपनी बीवी को ये नहीं बताया कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि मेरी दोस्त काफ़ी दिन के लिए मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। एक दिन का सुनकर वे इतना उदास हो गई थी। ये पहली बार था जब मैं अपनी बीवी से दूर जा रहा था। हम सुबह के निकले और शाम को वहाँ पर पहुँच गए। ये बहुत बड़ी हवेली थी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कैसी जगह है, यहाँ किस किस्म के लोगों का आना जाना है और यहाँ पर कैसा काम होता था। और यहाँ पर जिस किस्म की औरतें मौजूद थी उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वे कौन सा काम करती हैं। उन औरतों को देखकर मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत आ गई थी कि मुझे अपनी बीवी याद आ रही थी। उसकी शर्म की अदा में मुझे इस कदर अपनी तरफ खींच लिया था कि मुझे उसके सामने दुनिया की हर औरत अब बुरी लग रही थी। मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ जहाँ पर शराब रखी हुई थी और महफिल जमी हुई थी। मैं भी उस महफिल में जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक औरत मेरे पास आई। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। वे जालीदार नकाब में थी। अगर वे मेरे पास 10 नकाब में भी आती तो मैं उसे पहचान लेता। वे और कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। उसने डांस करना शुरू ही किया था कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और वे फ़ौरन वहाँ से भाग गई थी। सब लोग परेशान हो गए थे। उसकी जगह दूसरी लड़की को लाया गया। उसने डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन जो लड़की मेरी बीवी थी वे कहाँ पर गायब हो गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा वे क्या सच था या कोई धोखा। मेरा दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दूं, लेकिन मैं मजबूर था। मैं इतने सारे लोगों को नहीं बता सकता था जो नाच रही थी वे मेरी बीवी थी। मैंने वहाँ पर मौजूद एक खास आदमी से उनसे पूछा तो उसने कहा कि वह लड़की तो बहुत ज़्यादा अनमोल है, उसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर वे तुम उस लड़की को चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलाने पड़ेंगे। तो मैं टेंशन में आ गया और मैंने आव देखा न ताव देखा और उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त ने मुझे आकर रोका और कहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो। अब मैं अपने दोस्तों को क्या बता पाता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उनसे नहीं कह सकता था कि मैंने अपनी बीवी को इस हालत में इतनी बुरी जगह पर देखा था। मेरे दोस्त ने जब मेरी हालत देखी तो मुझे दोबारा घर पर लेकर आ गए। मैं तो जैसे बर्बाद हो चुका था। मुझे पता था कि मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं होगी क्योंकि वह तो इस हवेली में थी। सारा रास्ता यही सोचता रहा कि मेरी बीवी कितनी ड्रामेबाज निकली है। जब मेरी उससे शादी हुई थी तो किस तरीके से अदाएँ दिखाकर मुझे खुश किया करती थी। मैं समझ नहीं पाया था कि ये अदाएँ एक शरीफ औरत की नहीं करती है। शादी की पहली रात उसका नमाज पढ़ना, शादी के दिन मुझसे पर्दा करना, ये सब कुछ तमाशा था। जब एक इंसान को अपनी असलियत छुपानी पड़ती है तो वह ऐसी ही करता है। मैं उससे गुस्से से घर में दाखिल हो गया और अपनी माँ से शिकायत ही करने वाला था कि अचानक से रुक गया क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरी बीवी बैठी हुई थी। वे दोनों टीवी पर कोई ड्रामा देख रहे थे। अपनी बीवी को अपने घर में देखकर मैं हैरान रह
रह गया, क्योंकि अभी तो मैं उसे हवेली में देख कर आया था। मुझसे पहले उसका घर पर पहुंचना नामुमकिन था। मैं फौरन से आगे बढ़ा और उसे बालों से पकड़कर सवाल करने लगा कि बताओ, उस हवेली में तुम क्या करने गई थी? तुम एक बदकिरदार लड़की हो। मैंने उसे वहीं पर जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे इतना मारा कि मुझे लगा कि चंद सांसें ही उसके अंदर काफ़ी रह गई थी। अपनी कसूर पूछ रही थी कि मैंने अपनी माँ से भी शिकवा किया कि मेरी शादी से लड़की से क्यों करा दी है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया और मेरी अम्मा ने मुझसे कहा कि क्यों जानवरों की तरह से लड़की को क्यों मार रहे हो, इसकी क्या गलती है? मैं तो चुनकर इस लड़की को तुम्हारे लिए लेकर आई थी। कल तक तो तुम बहुत ज़्यादा खुश थे और आज क्या हो गया है? मैंने जब सारी बात अपनी अम्मी को बता दी तो उन्होंने हैरत से मुझे देखा और कहा कि जब से तुम गए हो तब से उस लड़की ने सारा दिन मेरे साथ ही गुजारा है और मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसे अपनी आंखों से देख कर आया था, लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि मेरी माँ मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मेरा सर फट रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बीवी ऊंची आवाज़ में रोई जा रही थी। वे सारी बात क्या थी, मेरी समझ से बाहर थी। मेरी माँ ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने अपनी बीवी से बातचीत बंद कर दी थी। मेरी बीवी रोते हुए मेरी तरफ देखती रहती थी। अगले दिन मैं तफ्तीश के लिए उसी जगह पर अपने दोस्त के साथ चला गया। मैंने अपने दोस्त से सारी बात बता दी। मेरा दोस्त सारी बातें सुनकर हैरान हो गया। हम वहीं पर पहुँचे और पूरी राजदारी के साथ हमने उस आदमी से बात की जो उस लड़की को वहाँ पर लाता था। मालूम हुआ कि वे लोग गांव के रहने वाले हैं। मैं और मेरा दोस्त फौरन उस दलाल के पास गए। मेरे दोस्त ने उसे कहा कि वे लड़की कहाँ पर है, हम उसकी मुँह मांगी कीमत देंगे। मेरा दोस्त ऐसा कहते हुए मुझसे नज़रें मिला नहीं पा रहा था। मेरा दिल पर जैसे खंजर चल रहे थे, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था उस लड़की को सामने लाने के लिए। मैंने उस दलाल से कहा कि वह लड़की तो मैं कोठे से लेकर आया था, वह लड़की वहीं पर रहती है, मेरा काम वहीं पर है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। अगर आप मुझे 2000 रुपये दें तो मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। बाकी डिटेल्स आप उसकी नायिका से कर लेना। मेरी दोस्त ने उसे 2000 रुपये दिए और वह कहने लगा कि चलो मैं आपको वहाँ पर लेकर जाता हूँ। वह शख्स हमें वहाँ पर लेकर चला गया। मैं उस लड़की को देखकर परेशान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ, क्योंकि वह पूरी की पूरी मेरी बीवी जैसी थी और मैं सोच में पड़ गया कि मेरी बीवी यहाँ पर कैसे पहुँच गई थी। मैंने तो उसे इतना मारा था कि वे सफ़र करने के लायक नहीं थी। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे और अब सारे निशान कैसे गायब हो गए। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वे चौंक कर खड़ी हो गई और मेरे कदमों में गिर गई। उसने मुझे कहा कि खुदा के लिए मेरी बहन को तलाक मत देना, उसे घर से मत निकालना, उसका कोई कसूर नहीं है, वह वाकई में बहुत ही नेक और पर्देदार लड़की है, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से पूछने लगा कि कौन सी बहन और कैसी बहन। उस लड़की ने बताया कि आपकी बीवी मेरी जुड़वा बहन है, हम दोनों हम शक्ल हैं, शक्ल और सूरत और कद सब कुछ एक जैसा है। हम दोनों के वजूद में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। अक्सर जुड़वा बहनों में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि पहचान ही नहीं जाती। हम दोनों बहनें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। मैं हैरत से उसे देख रहा था कि वह खड़ी हो गई। उसने कहा कि आप लोग बैठ जाओ, मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ। उसकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, सो मैं आराम से उसकी सारी बात सुनने लगा था। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू करी। मेरा पूरा जिस्म ठंडा हो गया था। उसने कहा कि हम दोनों बहनों का ताल्लुक एक बहुत ही शरीफ घर से था। हमारे पापा मस्जिद में काम करते थे और मेरी माँ घर पर काम करती थी और हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन 12 साल की उम्र में मुझे किसी ने अगवा कर लिया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिली। जिस इंसान ने मुझे पकड़ा था उसने मुझे उस कोठे पर भेज दिया और यहाँ पर मेरे साथ वही सलूक हुआ जो एक अगवा हुई लड़की के साथ होता है। मैं तो एक 12 साल की बच्ची थी और 12 साल की उम्र में ही मुझ पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। मेरे बड़े होने का भी इंतज़ार नहीं किया गया। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किए थे। फिर मैं मजबूर हो गई कि ये काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे भूखा प्यासा रखना शुरू कर दिया, मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके रंग में ढलती चली गई। फिर 10 साल बाद मैंने अचानक से मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। उसने मुझे देखकर पहचान लिया, मुझे
गले से लगाया और मुझे कहा कि तुम कहाँ पर चली गई थी। मैंने उस औरत को पहचाना नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। वे मेरी माँ थी। उसने मुझे देखकर इसलिए पहचान लिया था क्योंकि मेरी एक और बहन बिल्कुल मेरी ही जैसी थी। फिर उसने मुझे मेरी बहन दिखाई, वह भी इस बाज़ार में शॉपिंग के लिए आई हुई थी। मुझे बहुत कुछ याद आ गया। मैंने अपनी माँ बहन को गले लगाया। हम तीनों काफ़ी देर तक रोते रहे थे। फिर मेरी अम्मा ने बताया कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, हम यहाँ उसकी शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। मैं अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, अब मैं इतनी गंदी हो चुकी हूँ, आप मुझे कोई शरीफ घर का कबूल नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी थी और उसने कहा कि हमने तुम्हारी याद में इतने आंसू बहाए हैं कि अब आंसू ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि जो तुम्हें उठा कर ले गए थे वे तुम्हें ऐसी गंदी जगह पर ही लेकर गए होंगे। मेरी रातों की नींद तुम्हारे जाने के बाद उड़ गई। लेकिन वक्त गुजरता गया, मैं खुद को संभाल लिया था। बस मैं यही दुआ करती थी कि काश तुम मर जाओ, लेकिन ऐसे हाथों में ना लग जाओ। लेकिन ये बात सुनकर मेरा दिल फट रहा है कि तुम ऐसे हाल में पहुंच गई हो जिसका मुझे ख्वाब था। मैं बहन की शादी में बुर्का पहन कर आई थी, मैंने आपको वहां पर देखा था। शादी वाले दिन मेरी बहन खुद के साथ पर्दों में छुपा कर बैठी थी। उसकी यही वजह है कि उसे कोई देख ना ले और मेरा जैसा ना समझ ले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे। हम लोगों को यही खौफ था कि कहीं इस शादी में ऐसा इंसान मौजूद ना हो जिसने मुझे कोठे पर देखा हो और फिर वह आपसे कह के आपकी बीवी एक तवायफ है। आज मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही थी, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि कभी हमारे पास मत आना, तुम्हारी इज्जत खत्म हो चुकी है। अगर ये बात खुल गई तो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस सब में तुम्हारा कसूर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मेरा है और ना ही तुम्हारी बीवी का है। लेकिन फिर भी ज़माना हमें जीते जी मार देगा। ये लड़की अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल की और इसे कहा कि मुझे मेरी बीवी दिखाओ, तो मेरी बीवी मेरी माँ के साथ बैठी हुई थी। मैं घर पर आया तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं किन अल्फाज में अपनी बीवी से माफ़ी मांगूं। ये बिल्कुल बेकसूर थी, उसकी बहन बिल्कुल मासूम थी। उसकी बहन को तो सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अगवा कर लिया गया था। उस बेचारी का क्या कसूर था, वे तो एक दलदल में गिर चुकी थी। मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, लेकिन अम्मा ने कहा कि तुम्हें माफ़ी ना तुम्हारी बीवी देगी और ना ही मैं। एक शक की बुनियाद पर तुमने उस बेचारी को मार मार कर कमज़ोर कर दिया। किसी पर हाथ उठाने से पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर मैं उसके साथ न रहती तो शक की गुंजाइश थी, लेकिन जब तुम्हारी माँ तो हमसे कह रही थी कि तुम्हारी बीवी सारा दिन मेरे साथ थी, तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं उसकी बहन से मिलकर आया हूँ, मेरा भी कसूर नहीं है। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे जैसी होगी। मेरे बार बार माफ़ी मांगने पर मेरी माँ और मेरी बीवी ने मुझे माफ़ कर दिया। फिर मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बीवी की जुड़वा बहन को उसे घर से निकलवा लिया था और अपनी माँ के साथ उसे दूसरे शहर भेज दिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। अपनी बीवी को मैं हर महीने उसकी माँ और उसकी बहन के पास मिलवाने के लिए लेकर जाता हूँ। और अब आप मुझे बताओ कि मैं अपनी बीवी और अपनी साली के साथ कैसा किया। सब कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।